Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Chapter 8 Waves. Waves, motion and sound topic है. Chapter 8 Physics. We have completed motion topic. Now we are starting waves. So what basically waves is periodic disturbances of particle in any medium is called waves. What does it mean? We have discussed what is periodic motion. Okay, periodic is a thing which repeated itself after the interval of time. एक ये चीज रिपीट होती रहे तो वी कॉल इट पीरियोडिक. ठीक है, तो पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस मीन द सेम थिंग इज रिपीटिंग again and again. So periodic disturbance of a particle in any medium. So the wave will generate in any of the medium means I'm giving you example. If you throw a stone in the water, so medium is water. Okay, if you throw a stone in a water, तो स्टोन के पास एनर्जी थी जिससे वो मूव कर रहा था और वो पानी में जाकर गिरा, तो उसने अपनी एनर्जी वाटर को दे दी, पानी को दे दी. अब उस एनर्जी से रॉक की एनर्जी वाटर में ट्रांसमिट हो गई, जिसकी वजह से वेव्स जनरेट होंगी. ठीक है, तो इसकी वजह से वेव्स जनरेट होंगी. तो एनर्जी ट्रांसमिट हुई फ्रॉम द रॉक की इन वाटर, तो इसको कहते हैं हम लोग waves. The periodic disturbance of particle in any medium. हमने particle से periodic disturbance करवाई water medium में, तो it's called wave. The waves are used to transfer energy from one place to another. Basically we are transferring energy from water to rock to water, or if any we want to transfer energy from any medium to any other medium, so we are also using waves as a phenomena. Okay, so there are two types of waves: electromagnetic waves. Okay, one is electromagnetic, second is mechanical. Mechanical waves. So there are two types of waves. What is the difference between both of them? So I'm showing you. So this is the difference. There are two types of waves: mechanical waves and electromagnetic waves. Okay. So what is the difference between both of them? Mechanical waves are the waves which requires mediums to pass through. They require medium for their propagation. They cannot move without if there will be no medium. Okay, what does medium means? That anything through which they can travel means a water. If we want to pass water from somewhere, from one point to another point, so what you have to do is you have to make use of a pipe. Through pipe you can transfer water from one point to another point anywhere through any distance. So the medium which is used for the transferring of water from one point to another is pipe. ठीक है, पाइप यूज कर रहे हैं हम तो ट्रैवल करने के लिए वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक. तो इसी तरह मैकेनिकल वेव्स को भी कोई मीडियम चाहिए होता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. अगर मीडियम नहीं होगा तो वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. जिसके अंदर जिसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनको नहीं होता. लाइक अब मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि लाइट वेव, सन की रेज आ रही है हमारे पास,
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये हवा में आ रही हैं। लाइक दूसरी है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए। रेडियो वेव्स, रेडियो की वेव्स होती हैं, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इंफ्रारेड, एक्स रेज, thermal radiation, ultraviolet rays, these all are the rays which do not require any medium, कोई मीडियम नहीं चाहिए, इनको खुद ही पास हो जाती है। तो दिस इज द एग्जांपल्स, these all are the examples of electromagnetic waves, ठीक है। they do not require any medium to pass through, okay। The other one is mechanical waves which require a medium, without medium they cannot ट्रेवल, ओके। एग्जाम्पल क्या है इसकी, स्ट्रिंग वेव्स। स्ट्रिंग क्या होता है, गिटार स्ट्रिंग्स, ठीक है। गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, आप उसको जब हिलाओगे तो उसके अंदर वेव्स जनरेट होती हैं, तो वो स्ट्रिंग के अंदर ही जनरेट होती हैं, तो दिस इज द मीडियम। वाटर वेव्स, वाटर इज द मीडियम, ठीक है। वाटर नहीं होगा, मैकेनिकल वेव्स नहीं जनरेट। साउंड वेव्स, साउंड की वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। तो लॉन्गिट्यूडनल, दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने एग्जांपल्स देख ली सारी, जो नो मीडियम वाली वेव्स होती हैं। नो मीडियम किस में होता है, सारे अल्ट्रावायलेंट जो होती हैं, अल्ट्रावायलेंट रेज, लाइट, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स होगी इसकी। अब देयर आर टू फर्दर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वन इज ट्रांसवर्स, अदर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये क्या होती हैं इसकी बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये याद रखिए, बस परपेंडिकुलर वर्ड याद रखें, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल है ये और ये ट्रांसवर्स है। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं, परपेंडिकुलर याद रखें एक ये वर्ड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज पैरेलल। The waves in which the particles of the mediums move perpendicular to the direction of the propagation of the waves are called transverse wave, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाटर की, तो इसमें वाटर की एग्जांपल आती है ट्रांसवर्स वेव में, कि जो रिपल्स क्रिएट होते हैं जब आपने स्टोन फेंका वाटर के अंदर, तो स्टोन ने अपनी एनर्जी वाटर को दे दी, तो वाटर में वेव्स जनरेट हो गई, तो रिपल्स जनरेट हो गए। तो दीज आर द रिपल्स विच आर जनरेटिंग इन द वाटर आर perpendicular to the rock, the material which you have thrown, or the particle. So these are called transverse wave. The water wave is the example of transverse wave. Electromagnetic waves are also the example of transverse wave. Waves in a ripple tank are transverse waves also, okay। These all are the examples for transverse wave. If we talk about longitudinal waves, the waves which are parallel to the particle of the medium, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स होती हैं साउंड वेव, साउंड वेव्स पर पैरेलल होती हैं, ठीक है। एयर अगर मीडियम है तो साउंड वेव्स पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, तो साउंड वेव इसकी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल की, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखें ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे होती हैं और ट्रांसवर्स वेव कैसे होती हैं, ठीक है। आपके पास ये लिखा हुआ है कि वेव मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, एग्जांपल्स रिपल्स फॉर्म इन द सरफेस ऑफ द वाटर, और यहाँ पे क्या है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में ये सारी चीजें होती हैं, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, और क्या होती हैं पैरेलल होती हैं,
अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स तब फॉर्म होती हैं जब टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑन ईच अदर द पार्टिकल फॉर्म। जो एक वेव जनरेट होती है, ये एक वेव बनाई है मैंने आपके सामने। वेव्स यूं बनती हैं, ठीक है, यूं वेव्स बनती हैं अगर एक वेव हो। लेकिन अगर इसके यहाँ ऑपोजिट में एक और वेव बना दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव हो जाएगी, या स्टैंडिंग वेव आप कह सकते हैं इसको। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल। क्या होता है? टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, अब हम लोग नोड्स एंटी नोड्स की बात करेंगे। अगर वेव में, देखिए ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स किस तरह बन रही हैं। Stationary waves are produced by the superposition of two progressive waves of equal amplitude and frequency traveling with the same speed in opposite directions. तो एक ग्रीन वेव है और एक ब्लू वेव है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसलिए वेव्स जो हैं स्टेशनरी कहलाएंगी या फिर स्टैंडिंग कहलाएंगी। अब ये देखें नोड और एंटी नोड क्या होता है। नोड वो जगह होती है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। एम्पलीट्यूड याद आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था अभी टिग्नोमेट्री में। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, द पॉइंट where the amplitude is zero is called node and the point where the amplitude is maximum is called antinode। ये सिंपल डेफिनेशन है, बाकी इसमें भी कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, देखें। अगर मैं अब वेव्स बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नोड होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है। तो वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो इट्स कॉल्ड नोड। ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगी, ये भी नोड होगी, ये भी नोड होगी, ये सारी नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स नोड्स। ओके, तो दीज ऑल आर एंटी नोड्स। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एंटी नोड्स, एम्पलीट्यूड आर मैक्सिमम है। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। द और नोट्स में लिखा हुआ है द पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मिनिमम हो। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब जीरो पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू जीरो है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। और तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या कहलाएंगे? एंटी नोड कहलाएगी। द नोड्स, द टू नोड्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा बाय टू। दो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय टू होता है, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ।
The ends of the string must always be nodes. ये याद रखें, the ends of the string must always be nodes. End of the strings ये हैं हमेशा, ये हमेशा नोड कहलाएंगे. ये ends है ना, ये हमेशा nodes होती हैं. Antinode, the point where the displacement of the particle is maximum. ठीक है, is called antinodes. The middle point of the string is antinode. Middle point of the string हमेशा antinode कहलाएगा. ठीक है, ये हम लोग ने देख लें ये वेवलेंथ क्या होता है. जब पूरी एक कंप्लीट हो जाती है तो वो वेवलेंथ कहलाती है. मैं आपको ये आगे बना के दिखा दूंगा. ठीक है, ये देख लें. यहां से लेके एक वन वेवलेंथ कितना होगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ से पिंक से जो बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया. दिस इज 1 लैम्डा. ठीक है, ये लैम्डा लेंथ कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है. और ये जो होगा दो नोड्स का जो डिस्टेंस होगा आपस में, यहाँ से लेके यहाँ तक दो नोड्स का आपस में डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2, उसका हाफ होगा. लैम्डा बाई 2. और दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाय 4 होगा. अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ एंटी नोड से एंटी नोड तक, क्या होगा इसका, लैम्डा बाय 4. ठीक है, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है और हार्मोनिक्स क्या होता है. ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो हमेशा. ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ. ये देखें फर्स्ट हार्मोनिक, उसको ही कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जो देखें एक लूप जो कंप्लीट कर रहा है, एक क्रस्ट और ट्रफ होता है. क्रस्ट ऊपर वाला होता है हमेशा एक्स एक्सिस से, नीचे वाला ट्रफ होता है. जो एक क्रस्ट पूरा कर रहा होता है वो एक फ्रीक्वेंसी बनाता है. तो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक. अगर एक ऊपर से जो लैम्डा बाय 2 है, जो एंटी नोड हम लोगों ने अभी डिनोट किया, तो वो क्या होगा देखें. ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट वाली. यहां से लेके यहां तक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है. ठीक है, इसका क्या होगा, लैम्डा बाय 2. सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी जब पूरा एक कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक लैम्डा कंप्लीट हो जाती है पूरी रेवोल्यूशन, तो फिर उसको क्या कहते हैं, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन F2 से डिनोट करते हैं और लैम्डा उसकी वैल्यू होती है. ठीक है, लैम्डा उसकी वैल्यू होती है. F2 देख लें. अब F3 का होता है जब 3 लूप हो जाएं. फर्स्ट लूप यहाँ से शुरू हुआ, सेकेंड लूप यहाँ पे खत्म हुआ, फिर थर्ड लूप. ठीक है, वो F3 होती है, उसकी वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 होती है. वैल्यूज आप याद रखें. F1 की लैम्डा बाई 2 होती है, दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस है. जो सेकेंड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन, दोनों उसके नाम है. और पहले जो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक. तो पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमेशा फंडामेंटल कहते हैं, और बाकी सारी जो आगे होती हैं F2, F3, F4, उसको हार्मोनिक्स कह रहे होते हैं हम लोग. ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप विद अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी से इनको सेट किया जाता है. ये मैं बता रहा हूँ आपको कि F3 क्या होता है. अब 3 जब उसने लूप कंप्लीट कर ली तो 3 लैम्डा बाई 2 F3 की वैल्यू होगी, और 4 हार्मोनिक F4 या थर्ड ओवरटोन की वैल्यू 2 लैम्डा होगी, क्योंकि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, लैम्डा था. और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी लैम्डा होगा. तो क्या हो गया, लैम्डा प्लस लैम्डा इज 2 लैम्डा. ठीक है,
यहाँ पे देख लें आप, transfer stationary waves in a scratch string. Frequency of a string waves in a scratch string is क्या होती है? F is equal to velocity upon lambda. चलिए मैं उधर कर देता हूँ। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव पहले मैं बता दूं आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं मैं आपको। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला होता है जो हमने उस दिन कल पढ़ा था, 1 अपॉन टाइम पीरियड। वही उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स, या उसमें हम लोग बोल रहे थे नंबर ऑफ मोशन, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखें। इसको इस तरह भी डिनोट कर रहे होते हैं, बुक में आपने देखा होगा इस तरह। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये लिख दें या एफ लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, वेव वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी वी होती, वी से डिनोट करते हैं, और ये वेलोसिटी होती है वेव की कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके क्या स्पीड है, तो वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, वेव वेलोसिटी होती है ये। द नेक्स्ट थिंग इज वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? द लेंथ बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ये पूरे दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट की जो लेंथ होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। जो हमने देखा अभी, जब पूरा यहाँ हो जाता था तो उसको हम कहते थे ये लैम्डा के बराबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मैंने सिंबल बनाया फ्रीक्वेंसी का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट जो आता है वो वेलोसिटी आती है। तो इसको ये लिख लें या इस तरह लिख लें, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा, या आपने ये भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसका? फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, आगे चलते हैं इसमें। ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स एंड स्क्रैच स्ट्रिंग क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है उसका। जब आप डायग्राम देखते हैं, ये देखें, एल जो देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को सबसे ऊपर, ये लेंथ होती है। तो एन पाई बाय टू, पाई बाय टू क्या होता था? दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस। मतलब एक ऊपर से, जब एक सिर्फ क्रेस्ट बना हुआ है, नीचे से ट्रफ उसको ज्वाइन नहीं कर रहा नेक्स्ट में, तो सिर्फ वो क्या हो गया? लैम्डा बाय टू। और अगर क्रेस्ट भी मिल जाएगा तो वो लैम्डा हो जाएगा पूरी। जैसे ये वाले, जैसे सेकंड फर्स्ट पे डायग्राम देखें कि ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा बना हुआ है, अभी क्रस्ट बना हुआ है, नीचे नहीं है। डॉटेड को नहीं देखें आप, जस्ट पिंक लाइन को देखें। तो ये क्या है? क्रस्ट। तो लैम्डा बाय टू, वन नोड से लेके दूसरे नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू होता है। जब पूरा नोड, जब देखें अब एक नोड से लेके दूसरे नोड तक नहीं, तीसरे नोड तक जब जा रही है तो उसका पूरे का क्या होगा? लैम्डा होगा। अब देखें अगर तीसरी चीज हो, एक नोड, दो नोड, तीन नोड तक जा रही है,
सॉरी 1 2 3 4th नोड तक, तो इसकी क्या वेवलेंथ होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ये कौन सा होता है, F3 है। ये पहला वाला F1 है, दूसरा F2 है, तीसरा F3 है, चौथा F2 F4 है। फ्रीक्वेंसी फोर्थ फ्रीक्वेंसी या थर्ड हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन, तो इसका 2 लैम्डा होता है। मैंने बताया था कि देखें 1 2, ये यहाँ से लैम्डा कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से फिर शुरू हुआ, यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। फिर ये फोर्थ ओवरटोन या फिर फिफ्थ हार्मोनिक, इसमें 5 क्रस्ट और ट्रफ बने हुए, और नोड्स इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 नोड्स होंगे। तो इसका क्या वैल्यू होती है, 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब ये इसकी वेवलेंथ के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए। ठीक है, लैम्डा बाई 2 होगा, यहाँ पे आपने 1 रखा है, यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला देखें, एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे फर्स्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। तो देखें वेवलेंथ में लैम्डा इज इक्वल टू 2L लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जनरल फार्मूला देखें, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के लिए पुट करूंगा 1, एन की जगह 1, तो 1 तो कुछ नहीं होता, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। अब यहाँ पे रखूंगा मैं 2। ठीक है, अगर 2 रखूंगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप कैंसिल करके लैम्डा इज इक्वल टू एल लिख सकते हैं। बिकॉज देखें यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है, और एल भी यही है, एल ये देखें ये जो लिखा हुआ है, एल भी यही होता है। तो लैम्डा और एल एक ही चीज़ होता है, लैम्डा और एल बराबर होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे आप, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, सिंपल, जो आपको पता है वेव लेंथ का थर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी में ये होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 L हो जाएगा, या एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर आप एल के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, लैम्डा के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको इन्वर्स कर देंगे। इसी तरह 4, इसी तरह 5। तो फ्रीक्वेंसी भी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिखी हुई हैं, उसको ही चेंज कर देंगे एफ में, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। चलें ये आगे चलते हैं हम लोग, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये रिलेशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, इस रिलेशन से। आपको वेवलेंथ पता चल गई, आप लोग वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे डालें और फ्रीक्वेंसी में उसकी उसको निकाल लें, तो इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, क्या नेक्स्ट चीज़ है, इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वेवलेंथ के फॉर्मूलाज। अब हार्मोनिक्स वो होती हैं जो फर्स्ट से ऊपर होती हैं। द सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स कॉल्ड हार्मोनिक। द फर्स्ट हार्मोनिक इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो होती है। ओवरटोन क्या होते हैं, हार्मोनिक अदर देन द फर्स्ट आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ओवरटोन उसको कहते हैं जो अदर देन फर्स्ट हो। फर्स्ट तो फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, तो सेकंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवरटोन है। ठीक है, अब क्या है डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ये डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो पहली, चले मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि एफ इज इक्वल टू, हमने देखा क्या होता है रिलेशन जो हमने पढ़ा, वी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब ये हम लोग फर्स्ट की अगर बात करें तो F1, ठीक है, लेमडा 1 हो गया। हम लोगों को पता है कि इसका जो लेंथ होती है, F1 की जो लेंथ होती है वो सिर्फ ये होती है, तो लेमडा बाई 2 होती है। ठीक है, ऐसे ही है, लेमडा बाई 2 होती है। इसकी लेंथ सिर्फ ये होती है ना, या तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी खत्म हो गई, पूरी की लेमडा होती है। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या होगा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2L, यहाँ पे 2L पुट कर देंगे। अच्छा,
The velocity of a wave, whether the number of loop formed on it is given by, velocity किस तरह क्या given होती है? ये velocity given होती है loop के लिए, ठीक है? इसमें m भी होता है, t भी होता है, l भी होता है. अब इस ये velocity की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? f1 TL अपॉन m अपॉन 2l. इसकी भी वैल्यू पुट कर दी 2l, ठीक है, ये अंडर रूट में. तो लास्ट जो फॉर्मूला बन जाता है f1 का, ये जो आपको याद रखना है, ये पूरी डेरिवेशन नहीं याद रखनी. 1 अपॉन 2l TL अपॉन m. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये आपको याद रखना है. m और l क्या है? लीनियर डेंसिटी है, ठीक है. m और l डिनोट द लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है. डेंसिटी जो डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी भी हो सकती है, टी डी लिखा हो, एक ही बात है. अच्छा, अब सेकंड का क्या होता है? F2 के लिए अगर आप बात करें तो F2 में क्या करेंगे? सिंपल एक चीज चेंज होगी, L, ये वाली चीज, क्योंकि ये सेकंड फ्रीक्वेंसी की सेम नहीं होती. सेकंड फ्रीक्वेंसी की लैम्डा इज इक्वल टू L होता है, L/2 नहीं होता, ठीक है. तो ये जब चेंज हो जाएगा तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो बनेगी F2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन L TL अपॉन M, ठीक है. ये सेकंड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. इसको आप डेंसिटी की फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, T अपॉन D. अगर डेंसिटी आपको गिवन हो, आपको ये नहीं गिवन हो, तो डेंसिटी की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को. L अपॉन M लिखा ना, मास, तो नीचे इनवर्स में लिखा हुआ है, नीचे m, तो इसलिए नीचे आएगा डेंसिटी. ये F1 F2 की वैल्यूज हो गई. आगे मैं F3 की बता रहा हूँ आपको. F3 की क्या होगी? क्या चेंज होगा? लैम्डा क्या हो जाता है? लैम्डा चेंज हो रहा है, इसलिए 2L अपॉन 3 हो जाता है, या L 3/2 लैम्डा हो जाता है. तो हम लोग क्या करेंगे अब? F3 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2L अंडर रूट TLM, या फिर T अपॉन डेंसिटी. दोनों तरह से मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है. अच्छा, अब देखें, अब इसका एक फंडामेंटल एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो होता है इन सारी फ्रीक्वेंसीज का, जो आपने निकाला. प्रोड्यूस एन लूप फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन लूप्स. एन लूप्स निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको फाइंड करने का. तो क्या होता है? एफ एन, ये जहाँ पे, यहाँ पे जो भी एफ एन रखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रखा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे F1 का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है. यहाँ पे जो भी आएगा, अब यहाँ पे अगर आप 2 रख रहे हैं n, तो यहाँ पे 2 लिख दें और F1 की पूरी वैल्यू लिख दें. तो आप F2 के लिए लिख सकते हैं, F3 के लिए लिख रहे हैं n की जगह 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे पूरी Fn की वैल्यू. तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ F1 की वैल्यू याद रख लें और ये फॉर्मूला याद रख लें, तो फिर आपके पास हो जाएगा. और लैम्डा के लिए भी इसी तरह है. अगर लैम्डा n है, जो भी लैम्डे निकाल रहे हैं आप 1 2 3 4, तो 2L ऊपर रखें और नीचे n रख दें, ठीक है. ये n फॉर्मूलाज. अच्छा, इसमें अभी इतना ही था. और नीचे अब एक फॉर्म, वो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वो देखें आप. हम लोग ये वेव्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग. सोनोमीटर. सोनोमीटर क्या होता है? प्रैक्टिस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है फॉर स्क्रैच स्ट्रिंग फॉर वाइब्रेटिंग अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप. जो हम लोग, इसकी मदद से क्या होता है, ये मतलब एक apparatus है सोनोमीटर, जिसकी वजह से हम लोग
वाइब्रेटिंग पोर्शन को डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए यूज होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन होती है जो पोर्शन में डिवाइड कर दे इन जितने हम लोग चाह रहे हैं इन डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स, तो वो कौन सी होती है, वो सोनोमीटर होती है। ठीक है। टी इसमें टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होता है, ये टेंशन होती है, और डी डेंसिटी होती है। इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, बुक में म्यू भी लिखा होगा। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल देखें, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। A vibrating string under a certain tension produce 100 vibrations per second। ठीक है, 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट हो रही है, और उसके ऊपर हमने जब टेंशन पुट की है तो क्या कर रही है, प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है। आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, find the number of vibrations find the number of vibrations produced per second when the tension increases by 4 times। कह रहे हैं अब आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बतानी है। पहले 100 वाइब्रेशंस थी जब आपने टेंशन पुट की है, सर्टेन टेंशन, ये नहीं बताया कितनी टेंशन पुट की है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अब आप बताएं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी होंगी एक सेकेंड के अंदर जब आपने टेंशन इंक्रीज कर दी है 4 टाइम्स। ऑप्शंस आर 100, बी 300, सी 200। और आंसर बताएं। समझ आ रहा है आप लोगों को? 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा या 400 होगा। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन, इन्होंने बोला है कि एक टेंशन प्रोड्यूस की जिससे एक जो स्ट्रिंग है वो 100 वाइब्रेशंस पर सेकंड वाइब्रेट हुई है। आपको बताना है कि अगर उस टेंशन को हम लोग 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो अब कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उस स्ट्रिंग के अंदर। तो इसका सिंपल आंसर 400 है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 400 होता है। 4 टाइम्स आपने इंक्रीज कर दी उसी टेंशन को, तो जो 100 वाइब्रेशन हो रही थी उस टेंशन के अंदर, अब उसी टेंशन को हमने 4 टाइम्स कर दी है, तो उस तरह मतलब अब 400 वाइब्रेशन होंगी एक सेकंड के अंदर, क्योंकि टेंशन को इंक्रीज कर दिए 4 टाइम्स। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हो तो यू विल बी सिलेक्टिंग आंसर सी, ऑप्शन सी, क्योंकि 200 होगी अगर 2 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे 400, 3 टाइम्स करेंगे 300। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, वीएच रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट a VHF radio station
VHF radio station broadcast at a frequency of 90 megahertz. ठीक है. What is the wavelength of the wave वेवलेंथ बतानी है आपको जो उसने बाय द स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुई है. ठीक है. देखें क्या क्या चीजें गिवन है. VHF radio station broadcast at a frequency of 90 megahertz. So frequency is given as 90 megahertz. Megahertz means मेगा का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट 6. ठीक है. मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6. तो मेगाहर्ट्ज. व्हाट इज द वेवलेंथ? यू हैव टू टेल द लैम्डा वेवलेंथ वेव ब्रॉडकास्ट बाय द स्टेशन. और कुछ भी नहीं गिवन आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. आपके पास फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपको निकालना है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता. तो वेलोसिटी इसमें आपको गिवन ही है कि VHF रेडियो स्टेशन की जो इसकी जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. रेडियो की कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसका कोई मीडियम नहीं होता. और दूसरी कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव, जिसका मीडियम होता है. तो इन दोनों में फर्क ये है मीडियम और नो मीडियम का. अब इसकी जो वेलोसिटी होती है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो एक स्टैंडर्ड वेलोसिटी होती है जो कि V इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है. जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा हुआ है और या फिर आपको इस तरह की कोई चीज दी है, रेडियो स्टेशन या माइक्रोवेव्स या लाइट, सनलाइट रेज, अल्ट्रावायलेट, इस तरह की चीज दी है आपको, लेकिन वेलोसिटी नहीं गिवन, तो डायरेक्ट आप एज्यूम कर लेंगे वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 8 होगी उसकी. ठीक है. ये स्टैंडर्ड होती है. तो आपने वैल्यूज पुट की 3 एक्सपोनेंट 8 वेलोसिटी की जगह, फ्रीक्वेंसी की जगह 90 एक्सपोनेंट 6. लैम्डा की वैल्यू बताएं. ऑप्शंस आर, ए क्या है, 0.30, 0.33, 12 एक्सपोनेंट 15, 3.33, 3.3 मीटर आंसर आ रहा है. तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन बी है 3.33.